ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ शराब ਦੀਆਂ बोतलें पईयां हुई। स्कैन होएगा, स्कैन की रिपोर्ट भी कभी कभी जो है वो 2 दिन से लेकर 20 दिन के बीच में कभी भी लग सकता टाइम। नहीं, फोन पे अपॉइंटमेंट है। आप हिसाब लगाओ, डॉक्टर फोन पे अपॉइंटमेंट ले रहा है, वो भी कॉल पे, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी नहीं, सिंपल नॉर्मल कॉल पे अपॉइंटमेंट ले रहा है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੈਗ ਸਟ੍ਰੈਪਸ ਨਾਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਲੈਪਟਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਮੈਕਬੁੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਐਪਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਲੈਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਪਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਤਰਫ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਉਸਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ BRP ਦਾ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਸਦਾ ਮੈਡੀਕਲੀ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਂਡ ਉਸਨੂੰ ਜੋ UK ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਨਾਲੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੈਰੀ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸ਼ੈਕਲਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਲ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੇਲ ਵਿਲੇਜ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲਾਂਡਰੀ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਪਸ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੇ ਡਾਊਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ਾਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹੈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਅੰਦਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਬਕਸ ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ, ਕੈਫੇਜ਼ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਜ਼ਾ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸਟੱਡੀ ਸਪੇਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ। ਸੋ ਯਾ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਲੇਕ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਲੇਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਾ ਇਹ। ਜੋ ID ਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਐਂਟਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ID ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸੀ ਅਪਰ ਪੋਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 5th ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ EPRM, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, EPRM। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਐਂਡ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗਰੁੱਪ ਮੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੀਬੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ 3 ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫ ਕੋਰਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਵਟਐਵਰ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਰੱਖੋ, ਦੈਨ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ 2 ਕਰਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਹੀ ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ। April ਦੇ ਐਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਕੰਮ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਉਸਦੀ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 3 ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਫਿਰ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਡਿਸਰਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ
ਜਾਂ ਮਿਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਕਟੋਸ ਇੰਟੋਲਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਚਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੈਮਰਾ ਇੱਥੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4:15 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈ। 4:15 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਜੋ ਬੁਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ 15 ਮਿੰਟਸ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁੱਜਣ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ 15 ਮਿੰਟਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਰੂਮ ਬੁਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ID ਕਾਰਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਮ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾਰਥ ਗੇਟ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾਰਥ ਗੇਟ ਐਂਡ ਉਹ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਓਲਡ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰੀ ਬੀਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨੇ ਹਲੇ ਚਾਂਕ ਮਾਰੀ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੱਜ। ਸਕਾਈ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ, ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਇਸ TV 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਜੇ ਆਫਕੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਗਰੁੱਪਮੇਟ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ UK ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ उस बारे अपन गल कर लेंगे। सो बात ऐसी है कि जो पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि भाई BRP वाले व्लॉग में कि कैसे मेरा दोस्त जो है वो बीमार पड़ गया था, उसको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ा, तो उसका इशू क्या था। सो सबसे पहले तो उसको जो है लोअर एब्डोमेन में पेन होने शुरू हुई, तो उसने ऑफकोर्स घरेलू नुस्खे वगैरह ट्राई किए बट कोई भी असर नहीं हुआ एंड वो पेन जो है वो काफ़ी दिनों तक कंटिन्यू रही। और फिर उसके बाद उसने कुछ दोस्तों वगैरह से बात की कि भाई ऐसे ऐसा इशू है, तो उन्होंने सलाहें दी, उसने वो ट्राई किया, कुछ दवाइयाँ वो इंडिया से लेके आया हुआ था, जिससे हमारे ऑफकोर्स अक्सर इंडिया के बच्चे जो है वो लेके आते हैं। ट्राई किया, कुछ देर के लिए दर्द ठीक होता था बट फिर से कंटिन्यू। तो फिर फाइनली उसने जो है यहाँ पर सिस्टम होता है UK में GP को रजिस्टर कराने का। NHS ऐप जो है हर एक, ये एक्चुअली एक इन्फॉर्मेशन भी है, हर एक स्टूडेंट या फिर कोई भी इंसान जो UK में आया है उसने एक इंश्योरेंस कराई होती है अपनी, ठीक है। उस इंश्योरेंस को हम हार्डली ही कभी यूज़ करते हैं, वैसे हालांकि यूज़ ना ही करना पड़े तो बेटर है, लेकिन सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि भाई उस इंश्योरेंस की वजह से हम फ्री चेकअप जो है वो करवा सकते हैं, और फ्री इवन ऑलमोस्ट हर एक चीज़ फ्री जो है वो हो सकती है। हमारा चेकअप से लेकर हमारे अगर कोई स्कैन्स वगैरह होने हैं और हमारे अगर कोई इवन इलाज होना है तो वो सब कुछ फ्री होगा। तो ऐप के थ्रू NHS ऐप है, उसके थ्रू जो है हमें रजिस्टर करना होता है। NHS एक नंबर है वो हमें मिला होता है, हमने वो ऐप में NHS नंबर, अपनी बाकी डिटेल्स, नाम, डेट ऑफ बर्थ है ना, वो सब डालनी है। और फिर उसके बाद वो हमें एक ID के लिए कहेंगे। ID में हम ऑफकोर्स अपना पासपोर्ट, यूजुअली पासपोर्ट ही डाला जाता है। पासपोर्ट डालने के बाद वो आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करने को कहेंगे, और वो वीडियो रिकॉर्ड जब आप करके उसी ऐप के थ्रू जब वो आप सेंड कर दोगे तो फिर वो 24 घंटे के आसपास का टाइम लेते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए कि भाई आपका हमने अप्रूव किया है या नहीं, या जो भी सिस्टम है कि भाई ये देखो इंश्योरेंस हमने करवाई हुई है, हमें NHS नंबर मिला हुआ है, हमारी ID डिटेल्स उनके पास हैं, हमने पासवर्ड भी प्रूव कर लिया, पर अगर उनको उस वीडियो से नहीं लगा कि भाई ये आप ही हो जो इस फ़ोन में आपकी ऐप यूज़ कर रहा है, तो वो रिजेक्ट कर देंगे। सो खैर उसके थ्रू आप ऐप के थ्रू जो है जब आपने एक बार रजिस्टर करवा लिया तो आपने क्या करना है, फिर उसके बाद उस अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करनी है, ठीक है। अब उसका क्या इशू था कि उसने अपॉइंटमेंट नहीं बुक करवाई, उसको जब पेन ज़्यादा बढ़ गई तो उसने डायरेक्टली यहाँ पर एक और चीज़ है वॉक इन सेंटर जिसका नाम होता है। सो वो वॉक इन सेंटर में गया। वॉक इन सेंटर में हम बिना किसी GP को रजिस्टर, उसमें कोई भी जा सकता है, उसमें यूजुअली आपको कोई ID प्रूफ वगैरह कुछ भी नहीं देना होता। ये चलो एटलीस्ट इनकी बात अच्छी है कि भाई वॉक इन सेंटर जैसी जगह इन्होंने बनाई हुई है कि अगर कोई इमरजेंसी है आपको तो उसमें आप सुबह जा सकते हो। सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक जो है वो ऑपरेट करता है वॉक इन सेंटर।
सो वॉक इन सेंटर में गया वो, उसने चेकअप करवाया, तो उन्होंने उसको एक्चुअली ये डर था कि भाई कहीं उसको कैंसर वगैरह तो नहीं हो गया, बट नहीं, कैंसर वहाँ पे उसको बोला गया कि मैं उसके साथ गया था एक्चुअली, वहाँ पर उसको बोला गया कि भाई आपको कैंसर तो नहीं है, पर फिर भी ये कुछ सीरियस इशू लग रहा है, आप एक काम करो, आप क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल है वहाँ पर जाओ। सो वो वहाँ पर सबसे पहली बात तो जब वहाँ पर गया तो उसको तो रिसेप्शनिस्ट ने मना कर दिया कि भाई आपको यहाँ पर चेकअप नहीं हो सकता, आपको जीपी के थ्रू आना पड़ेगा। और जीपी उस दिन सैटरडे और संडे को जीपी बंद होता है, जीपी से इमरजेंसी मीटिंग भी जो है वो नहीं पॉसिबल थी उन 2 दिनों में। तो अब रिसेप्शनिस्ट ने मना कर दिया। तो जैसे ही वो बाहर आया, मैंने उसको कहा कि नहीं यार तू एक काम कर, अब तू आया ही है हॉस्पिटल में, हम आए हैं हॉस्पिटल में, तो हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली इमरजेंसी में चले जाते हैं, सीधी बात, बिना किसी बात के, है ना, बिना किसी से बात किए हुए हम सीधा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। और लकीली हमारा ये फ़ायदा हुआ कि हम उस दिन जाने का कि इमरजेंसी में ऐसे बिना किसी बात के घुसने का कि भाई एटलीस्ट हमने ये बोल दिया कि भाई हम वॉक इन सेंटर गए थे और हमें वॉक इन सेंटर वालों ने बोला कि आप क्यूई में इमरजेंसी में चले जाओ। हम वहाँ पर गए। तो इससे पहले एक बात और मैं बता दूँ, हाँ, सिस्टम यहाँ का आप एक बार फिर से देखो, मैं बताता हूँ क्या हिसाब है कि भाई वॉक इन सेंटर में जब वो गया था उसको रिकमेंड किया गया कि भाई जो जिस डॉक्टर ने उसको वहाँ पर देखा उसने सिटी हॉस्पिटल बर्मिंघम वहाँ पर कॉल किया कि भाई हमारे पास ऐसा ऐसा केस है, थोड़ा सा सिवियर है, तो आप उसको एडमिट कर लो, मीन्स कि आप उसको देख लो, है ना, आप उसका चेकअप वगैरह कर लो, जो ब्लड टेस्ट वगैरह करने हैं वो आप देख लो, है ना, या और भी स्कैन्स वगैरह करने हैं तो आप वो कर लो। लेकिन उसका स्कैन नहीं किया गया, उसको मना किया गया। इनफैक्ट वहाँ पर डॉक्टर को मना कर दिया गया कि भाई हमने नहीं लेना, आप ये रहता यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के पास है तो आप इसको यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के पास का जो हॉस्पिटल है क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल, आप इसको वहाँ पर भेजो। कितनी बुरी बात है, आप हिसाब लगाओ कि डॉक्टर कह रही कि भी केस सवियर है, फिर भी उसको सिटी हॉस्पिटल में लेने से मना कर दिया गया। और जब हमने ये बात बताई आगे, ऑफ कोर्स जो वॉक इन सेंटर में डॉक्टर थी उसको भी बुरा लगा, लेकिन जब हमने ये बात बताई आगे क्यों हॉस्पिटल में, तो वो भी शॉक रह गई कि भाई ये क्या चक्कर है, मतलब ऐसे तो होना नहीं चाहिए था। बट एनीवेज, सो लकीली उसका नंबर आया, वो गया अब डॉक्टर से चेक करवाने। तो वहाँ पर क्या वहाँ कंपार्टमेंट्स हैं, ऐसे पर्दा सा ऐसे लगा होता है, तो पर्दा आगे करो, डॉक्टर्स जो है देख लेते हैं, वैसे 4-5 रूम्स बने होते हैं, वहीं पर डॉक्टर जो है वो देखते हैं मोस्टली। तो अब वो जब चेकअप करने गया तो मैं पर्दे के पास जाके खड़ा हो गया, मैं सुन रहा था सब कुछ, ठीक है। तो हालांकि डॉक्टर अच्छा था, उसने अच्छे से देखा, चेक किया वगैरह उसको, और फाइनली उसने भी यही चीज़ बोली कि भाई आपको जो है वो कैंसर नहीं है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि कैंसर की वजह से जो है वो कैंसर थोड़ा सा हार्ड होता है, पर आपका यहाँ पर अभी भी टिश्यू जो है वो सॉफ्ट है, क्योंकि उसको प्रोस्टेट था, तो प्रोस्टेट भाई राइट साइड पर यहाँ कहीं होता है। तो अब उसके बाद उसने फिर से रिकमेंड किया कि भाई हम स्कैन ऐसे नहीं कर सकते, तो आप क्या करो, आप पहले अपने जीपी के पास जाओ। और जीपी सबसे पहले तो उस बंदे ने बोल दिया भाई कि मेरे पास जीपी है ही नहीं है, मैंने ईमेल्स डाली थी। और लिटरली ऐसा हुआ था कि उस बंदे ने ईमेल्स डाली हैं अपने जीपी को और उसको आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ कि भाई, और मैं उसका नाम भी बता दूं, उस जीपी जो एक सेंटर है उसका नाम है यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर करके कुछ नाम है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के पास ही है वो। तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था उसको। तो उसने यही चीज़ उनको बताई कि भाई मैंने उनको ईमेल्स डाली है कि मेरे को रजिस्टर करवाया है ना अपने पास, क्योंकि हर एक इंसान, कोई भी इंसान अगर यूके में आया है उसका जीपी काइंड ऑफ पर्सनल डॉक्टर जो है होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब वो उसने बताया कि भाई मैंने तो इतनी ईमेल्स डाली, मैं उनके आज गया भी था, सैटरडे था, बंद था वहाँ पर, तो मुझे समझ नहीं है मतलब करना क्या है। उसने फिर क्या किया कि उसने उस बंदे से जो है पूछा कि भाई आपका NHS नंबर क्या है। उसने NHS नंबर जो है बता दिया। NHS नंबर बताने के बाद उसने बताया कि हाँ आप तो रजिस्टर हो जो है यूनिवर्सिटी मेडिकल स्टोर में, तो आपका डॉक्टर का नाम भी उसने बताया, कुछ सुनील बसरा करके नाम था, इंडियन ही डॉक्टर था, सो ब्रिटिश इंडियन डॉक्टर होगा। तो कहता कि भाई ये तो डॉक्टर है आपका, बट वो कहता मेरे को तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो कहता चलो मैं इनको मेल करूंगा अपनी तरफ से कि भाई इसका केस थोड़ा सा सिवियर है, आप इसको देखो, एंड है ना, फिर वही आपको रेफर करेगा, फिर आपका यहाँ पर क्यूई में स्कैन होगा, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल में स्कैन होएगा। उसने ईमेल कर दी। 2 दिन बाद जो है फ़ोन आता है उस मेरे फ्रेंड को कि भाई आपकी अपॉइंटमेंट है, ऐसे ऐसे है, तो मतलब आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो मंडे को रख दी गई है। तो पूछता ठीक है मुझे जो है मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। तो कहते नहीं फ़ोन पे अपॉइंटमेंट है, आप हिसाब लगाओ, डॉक्टर फ़ोन पे अपॉइंटमेंट ले रहा है, वो भी कॉल पे, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी नहीं, सिंपल नॉर्मल कॉल पे अपॉइंटमेंट ले रहा है। तो उसको कॉल आया मंडे को, हम एक्चुअली उसकी थी वीज़ा अपॉइंटमेंट,
US वीज़ा अपॉइंटमेंट थी उसकी, और लंदन में थी वो भी। तो हम लंदन से वापस आ रहे थे, ट्रेन में थे, मैं फिर से साथ में था और मेरे सामने उसको फिर से कॉल आ गया। डॉक्टर का बात कर रहा है, उसने बताया सारा कुछ ब्रीफ में कि भाई ये मसला है, तो आप बताओ, है ना, रेफर करो। उसने कहा ठीक है मैं रेफर कर देता हूँ आपको, आपका स्कैन हो जाएगा। उसने कहा मेरे को पता कैसे चलेगा कि भाई मेरा स्कैन वगैरह है ना होना है। कहता आपको शायद लेटर आए, शायद आपको लेटर आए QE की तरफ से। उसने कहा ठीक है। उसको 2 दिन बाद जो है ईमेल आती है कि भाई आपका GP चेंज कर दिया गया। आउट ऑफ नोवेयर GP चेंज कर दिया गया। मतलब मुझे कोई भी सेंस नहीं लगती। फिलहाल मैं नहीं कहूंगा कि भाई मतलब भाई यूके जो है बेकार ही है, नो, लेकिन अभी फिलहाल जो हालात हैं यूके में उनकी कोई सेंस नहीं बनती, सच में बता रहा हूं मैं, जैसे इंस्टेंसेस हो रहे हैं। अब GP चेंज हुआ, इसका मतलब ये है कि केस ठप हो चुका है। अब उसको फिर से जो उसको नया GP अलॉट हुआ है सेम मेडिकल सेंटर में, उसको फिर से उस GP को कंसल्ट करना पड़ेगा और वो फिर से रेफर करेगा। और वो GP की अपॉइंटमेंट भी जो है वो यूजुअली इमरजेंसी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। अब उसको 5-7 दिन पहले GP की अपॉइंटमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा, फिर GP अपॉइंटमेंट देगा, स्कैन होएगा, स्कैन की रिपोर्ट भी कभी कभी जो है वो 2 दिन से लेकर 20 दिन के बीच में कभी भी लग सकता टाइम, लिटरली बता रहा हूं। तो ये तो मतलब सिस्टम है। अभी फिलहाल मुझे नहीं पता पहले क्या था, लेकिन अभी जो चल रहा है मैं सिर्फ और सिर्फ उसका ब्रीफ कर रहा हूं। और ये लिटरली मतलब खुद को ग्रेट कंट्री बताते हैं। मेरे सेम नहीं, बीमारी वाला केस ही जो है वो हुआ था मेरे एक चाइनीज फीमेल फ्रेंड थी उसके साथ। एंड वो इतनी फेडअप होगी कि उसने मुझे कहा कि तरन अगर चाइना होता ना अब तक मैं ट्रीट भी हो चुकी होती। मैंने फिर उसके साथ ये वाला इशू शेयर किया। बात यही है कि भाई अगर फिर से हम यहां से क्या चीज सीख सकते हैं। अगर आप यहां पर आए हो तो भाई इंडिया से अपना अच्छा खासा चेकअप जो है वो करके आओ, पहले से करवा के आओ। मैं कहता हूं जितना जो मेडिकल किया जाता है यूके में आने के लिए, वो मेडिकल सफिशिएंट नहीं है। मैं लिटरली कहूंगा कि मुझे पता है कि भाई यहां पर आने की हड़बड़ाहट होती है कि भाई हमें जल्दी से जल्दी यहां पर आना है, पर फिर भी यहां पर आकर अगर आप बीमार पड़ गए, बेड पर पड़ गए, तो उसका फायदा क्या है? मैक्सिमम टाइम अगर आप बीमार रहे तो इससे अच्छा पहले ही अपने स्कैन्स वगैरह सारा कुछ करके आओ कि भाई मेरा सब कुछ सिस्टम अंदर वगैरह सब ठीक तो चल रहा है ना। एक पूरा कंप्लीट बॉडी प्रोफाइल टेस्ट जो है ना वो करके आना चाहिए मेरे हिसाब से। ये आप ही के लिए बेटर होएगा। मैं खुद भी नहीं करके आया था, बट अब जब भी मुझे इंडिया जाने का मौका मिला मैंने फुल प्रोफाइल टेस्ट कराना है अपना। अब पता नहीं यहां पर होगा नहीं होगा, मैं खुद भी अपने GP से बात करूंगा। अगर यहां पर टेस्ट होता है पता नहीं उसके लिए भी शायद 1 महीना 2 महीने की वेटिंग होगी, जितना मुझे अंदाजा है लिटरली। सो ये सिस्टम है। अपना ख्याल रखो, अगर यहां पर आए हो अपनी डाइट प्रॉपर रखो। अगर बाय चांस खाना नहीं बनाना आता, देखो पास में कोई गुरुद्वारा साहब है, गुरुद्वारे में जो है यहाँ यूके में हर एक गुरुद्वारा साहब में सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक लंगर चलता है। दिन में 1-2 बार वहां पर लंगर छक लिया करो और अपना बहुत ख्याल रखो यहाँ पर अगर आप आए हो तो। क्योंकि यहाँ पर आके भी अगर आप वो काम नहीं कर पाए जिसके लिए आप यहाँ आए हो तो आने का कोई फायदा नहीं है। आप इंडिया में ही बैठो तो बढ़िया है ना। यहाँ के सिस्टम के ऊपर भरोसा मत रखो, स्पेशली जो अभी फिलहाल की यूके की सिचुएशन है इसके हिसाब से यहाँ के सिस्टम पर कोई भी भरोसा मत रखो, इंक्लूडिंग जो मैंने पिछला केस बताया था पासपोर्ट और BRP का। ठीक है। सो एनीवेज इस वीडियो को मैं इतना ही रखूंगा क्योंकि 13-14 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। एटलीस्ट अकेली जो इस इशू के बारे में जो मैंने बात की है वही 13-14 मिनट की हो चुकी है। अगर आपको कोई भी और डिटेल चाहिए हुई कि भाई जैसे NHS ऐप पे प्रॉपरली कैसे रजिस्टर करते हैं, या फिर पासपोर्ट जो अगर गुम जाए तो उसको फॉर्म कैसे भरा जाता है, या फिर BRP अगर गुम जाए तो उसका फॉर्म कैसे भरा जाता है, क्या प्रोसीजर है, पूरा डिटेल्ड प्रोसीजर, सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर के बारे में अगर बात करनी है तो आप मुझे बताना। क्योंकि ऑफकोर्स मैं उसके साथ ही रहा हूं, मैंने सारा कुछ जो है किया है, उसके साथ रहकर ही किया है, उसकी हेल्प किया हर एक चीज़ में। तो मैं एक एक चीज़ का जो प्रोसीजर है उस पर भी अलग अलग वीडियोज जो है वो मैं बना दूंगा, स्क्रीन रिकॉर्ड करके या कैसे भी वो सारी वीडियोज जो है वो भी मैं बना दूंगा आपके ईज़ के लिए। और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता देना। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कि भाई आपको अब ये इशू आ रहा है, इस इशू के बारे में मुझे जो है वो बताओ, ये इस इशू का क्या जो है वो करना है। ठीक है। हर एक चीज़ का सोल्यूशन है। आई कैन एश्योर यू कि हर एक चीज़ का सोल्यूशन है, बस हमें उस सॉल्यूशन को ढूंढना है और एक राइट अप्रोच के साथ ढूंढना है। सो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में इतना ही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।